ऐसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम प्लानिंग में गिफ्ट तो बहुत कम करना, लेकिन देर पीपल आर थिंकिंग दैट इनहेरिटेंस टैक्स may not come. I am not saying anything. So long as Mr. Jaitley was there, I was sure it will never come, because he was also a very rich man. But about this, I don't know much, because we had inheritance tax till 1985. And you know what kind of a law, estate duty was there at that particular point of time. When we were redrafting the law, अब रीड्राफ्ट करके ख़त्म ही हो गया, अब क्या मैं कहूँ, कितना फील होता है जब इतना मेहनत करके आप लॉ रीड्राफ्ट करते हैं और उनको साइड में रख दिया जाता है. When we were redrafting the law, that particular point of time, somebody said, we are thinking of inheritance tax again. I said, what is the advantage of the inheritance tax? Tell me. And if you are going to have it, please go through the old Estate Duty Act. अगर कभी कुछ चीज़ समझ में आ जाए तो मुझे बता देना. मैंने भी CA पास करी थी, but estate duty, actually I don't know what kind of a law was that. This is we are talking about inheritance tax. मैं कहा आपका काम ही यही है, हमारे को अमीरों को मारते जाना और गरीबों से कुछ लेना नहीं है. आपके पास है क्या? 7 crore returns, only few lakhs are filing a return above 1 crore, and 1 crore 50 lakh, about 10 lakh. I'm telling you, 1 crore 70 people, only 10 lakh people, 1 crore 70 lakh people are filing. There are 1 crore 80 lakh return which is filed only because there is an obligation to file a return, but not a penny of tax is recovered from there. लगाते जाओ टैक्स, क्या फायदा होगा? At one time, 97.5% was the tax in this country. Income tax 97.5%, and then there was a wealth tax, there was a gift tax, and thereafter estate duty tax. तो आपकी collection क्या थी? From 97.5% you brought down to 70%, 70 to 60%, 60 to 50%, 50 to 40%, now it is 30%. What is the need of increasing it? After all, you are getting revenue and people are becoming honest day by day. Why do you want to increase the tax? The revenue is not there. हमें पैसा चाहिए. अरे वो वाइड वेस्ट बनाइए, पैसा कहाँ से आएगा otherwise? 130 crore people and you are getting returns only of 7 crore, and those who are paying above 10 lakh, hardly any number. Why can't you do that? वोट बैंक है ना, अमीरों को मारते जाओ. I said नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे. So we decided, let us do one thing. You want to increase the rate of tax, we will request you to make it 30 to 35%, only that slab to go up. But that should be above a certain amount, that it may be 3 crore, 4 crore or 5 crore, you can go for 35%. But not below that. Or maybe 2, if you want, you can make it 2.5 crore, whatever is it, not below that. They agreed that. Okay, we will have 35%, but only if it is going above it. I said, you have a permanent surcharge also going on, and it is not 30%, it is much more than that 30%. Agreed, sir. It went for the budget. बिल पास हो रहा, बिल प्रिंट हो रहा था, रोक दिया गया. What happened? They thought, somebody told them that you are increasing 30 to 35%, 5% extra money, but the central government will not get 5%. That 5%, out of that 5%, 2/3 will go to the state government and only 1/3 will go to the central government. और नाराजगी तो लोगों की हमारे पे होगी, जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. रात को 12 बजे बजट रोक लिया गया. And it was converted into surcharge. You know that surcharge? The entire amount of surcharge go to the central government. And that's why above 2 crore, 25%, up to 5 crore, and above 5 crore, 37% surcharge. Have you ever heard of that surcharge of 37% above 5 crore? The purpose of this surcharge, or maybe the rate from 30 to 35%, was that we may not go for inheritance tax. We may not go for inheritance tax. But I don't guarantee now. This year, if it is not coming, the next year it cannot come because of the change in the government. And change in the government does not mean कि government बदल जाएगी, 5 साल पूरे हो जाएंगे. आना तो उसी ने है. मैं बताता हूँ, या कुछ कर लो, मुगालते में मत रहना. आना तो मोदी जी नहीं है, मैं बता दूंगा आपको. है जी? चलिए सर, मैं कुछ और कुछ कहना नहीं चाहता. So what I am trying to explain,
प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू ट्रस्ट्स ऑल्सो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. यू कैन मेक इट ट्रस्ट. और ट्रस्ट होने की वजह इनहेरिटेंस टैक्स है एंड नो अदर. लेकिन वहाँ भी बेड़ा गर्क कर दिया है, आपको पता नहीं लगा क्या किया है. फ्रॉम 1 April 2017 बाई bringing amendment and bringing a new section, section 56 subsection 2 clause 10. जब ये 56(2)(10) आया, क्या है 56(2)(10)? Where any person receive from any other person or person a sum of money aggregating to rupees 50,000 or any immovable property for inadequate consideration, for without consideration, or for movable property without consideration, or for inadequate consideration, that amount will be taxable in the hands of the recipient. यही था 56(2)(10). इन्होंने बाद में कुछ एक्सेप्शंस डाली थी. उस एक्सेप्शंस में लिखा था इफ यू रिसीव ए ट्रस्ट कैन रिसीव द मनी इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर 12A और 1023C अप्रूवल दे कैन रिसीव द मनी. और ये लेकिन भूल गए कि अगर हमने ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट है, अगर प्राइवेट ट्रस्ट को पैसा आएगा तो वो रजिस्टर्ड थोड़ी होता है. चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ी 12A में रजिस्टर्ड थोड़ी होता है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड थोड़ी होता है. इट इज द सिंपल AOP. तो मैं गया, जब बिल आया, I went to the chairman, I said, what have you done? That if I create a trust, and I give more than 50,000 to the trust, the entire amount of money which I'm not talking about the income, the entire amount of money which the trust will receive, if it is more than 50,000, the entire amount will become taxable. Because where is the exception? Because what does it say? Where any person can be individual, HUF, firm, company, OP, BY, so trust is also a person. Where any person receives from any other person or person sum of money exceeding 50,000 or immovable property or movable property, तो immediately टैक्स लग जाएगा हर ट्रस्ट को. ये क्या कर रहे हैं? प्राइवेट ट्रस्ट को टैक्स लग जाएगा. अब चैरिटी की तो बात ही खत्म है ना, वो तो है मना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पस अमाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम. इनकम तो वी ऑलवेज पे टैक्स. बाद में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर. आइटम एक्सप्लेनेशन में आइटम 10 डाली है. क्या लिया? वेयर amount is received from an individual by a trust created for the benefit of the relative of the individual. Please, created for the benefit of the relative of the individual. अब आप ट्रस्ट बनाएंगे तो इंडिविजुअल ही बना सकता है. और किसके लिए बना सकता है? अपने रिलेटिव के लिए बना सकता है. अगर आप दूसरा कोई ट्रस्ट बनाएंगे, the entire corpus which the trust receive will become fully टैक्सेबल. ये 1/4/2017 से आ गया है. पुरानी बातें छोड़ दीजिए. पुरानी बातों में तो कोई भी ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट को दे दीजिए, सेटलमेंट में गिव एनीथिंग टू द ट्रस्ट. नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रस्ट अबाउट द मनी रिसीव्ड और दैट कॉर्पस रिसीव्ड. ओनली द इनकम पार्ट वाज टैक्सेबल. Now the principal amount which the trust will receive, if it is not created by an individual, if it is not created by an individual or set up by an individual, and that too for the benefit of his relative, the entire amount is going to be tax equity. So जो ट्रस्ट अब बनेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है और कोई क्रिएट नहीं कर सकता. पहले तो कोई भी ट्रस्ट क्रिएट कर लिया, किसी भी ट्रस्ट को दे दीजिए, वो प्राइवेट है, मे बी नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैरिटेबल. अगर प्राइवेट है तो सेक्शन 61, 62 को छोड़कर बाकी तो सब लगता था. लेकिन अब ट्रस्ट इंडिविजुअल बना सकता है. मैं पहले बता रहा हूँ 1/4/2017 से पहले की बातें अलग थी. So you can create a trust for the benefit of your relative. That can be a business trust, that can be anything trust. तो ट्रस्ट तो बहुत तरह के होते हैं. मैरिटल ट्रस्ट, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट बना के मैरिटल ट्रस्ट बना देते हैं हम. चैरिटेबल तो खैर बात ही अलग हो गई. एक होता है जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट. जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट का मतलब क्या है? यू डोंट क्रिएट ट्रस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, यू क्रिएट ट्रस्ट फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन. जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट, जनरेशन में एक स्किप कर दिया, ये बेटा कपूत है, ये खा पी के खत्म कर देगा, इसलिए क्या करो, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बना दो. दिस इज कॉल्ड एज जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट. ये भी एक नई ट्रस्ट बनी हुई है. एक स्पेंड थ्रिफ्ट ट्रस्ट. क्या है? ये बच्चा खा पी के खत्म ना कर दे तो लिमिट लगा दो, इतना ही पैसा वो यूज कर सकेगा बेनिफिशियरी, बाकी पैसा यूज नहीं कर सकता. इसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट ट्रस्ट. ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रस्ट, कि लाइफ के बाद डेथ जो बनेगी होने के बाद वो पैसा सारा ट्रस्ट को चला जाएगा. इसका इरिवोकेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रस्ट. ऐसे भी ट्रस्ट बनते हैं.
ऐसे भी बनते हैं। और ये भी बनता है लाइफ बेनिफिशियरी ट्रस्ट। क्या है? मैं ये प्रॉपर्टी बेटे को देता हूं, लेकिन मेरी वाइफ का, मेरी डॉटर का पूरा राइट होगा इस प्रॉपर्टी में रहने का। ये जब तक ये दोनों जिंदा हैं या मेरी वाइफ जिंदा है, तब तक कोई ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, एंजॉय कर सकते हैं। और मरने के बाद ये मेरे बेटे को जाएगी। इसे लाइफ बेनिफिशियरी ट्रस्ट भी कहते हैं। और एक आता है शेयर होल्डर ट्रस्ट। ट्रस्ट को सारे शेयर दे दिए गए। किसके लिए? बेनिफिशियरी कौन है? वो मेरे रिलेटिव हो सकते हैं। आई गिव माई ऑल शेयर्स टू माई द ट्रस्ट। शेयर्स दिए मैंने ट्रस्ट को, लेकिन बेनिफिशियरी कौन बनाए? अब तो मैं सिर्फ रिलेटिव बोलूंगा ना, अब तो बाकियों को बना नहीं सकता बेनिफिशियरी। माई रिलेटिव, इसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर ट्रस्ट। ये आप अपनी लाइफ टाइम में बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं। एक होता है टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट इज ओनली आफ्टर माई डेथ दिस प्रॉपर्टी विल गो टू द ट्रस्ट। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट किसी के लिए भी बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर रिलेटिव। टेस्टामेंट इज द विल, जो भी चीज बाई विल जाती है, दैट इज नॉट टैक्सेबल। That is not taxable. It is not a transfer. If I give anything by will to you, it is not taxable in your hand, because section 56(2)(10) gives the exception to that, property transferred by will or by gift or by. तो testamentary बना सकता हूं मैं trust. Testamentary trust when I create is only by way of will. विल के बाद मैं कह दूं कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी, ये चीजें इस ट्रस्ट को जाएंगी। वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। उसमें जरूरी नहीं है रिलेटिव होना, संजय जी, उसमें जरूरी नहीं है। लेकिन जो मैं खुद अपनी लाइफ टाइम में अपने ट्रस्ट बनाऊंगा, देयर इज ओनली फॉर बेनिफिशियरीज आर रिलेटिव। क्लियर है सर? ये ट्रस्ट क्रिएट करने का पर्पस, ये फैशन आया था जब इनहेरिटेंस टैक्स का मूव आया था। लोग सोच रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स ना आ जाए, इसलिए फायदेमंद है, अदरवाइज कोई फायदेमंद नहीं है। अब तो कोई बस पर्पस ही नहीं है। नाउ आई एम टेकिंग इट आफ्टर डेथ। देखिए, हमारे यहाँ दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, द अनदर इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। You know, for a Hindu includes Jain, Sikhs, Buddhists. For a Hindu, there are two acts after death. Of course, one is called Indian Succession Act 1925. The another is called Hindu Succession Act 1956. For Muslims, they are separately governed by Shariat law. Shariat law, हाँ, will कर सकते हैं only 1/3 of their property. Muslims can make a will only 1/3 of their property. बाकी तो पूछ के करना पड़ेगा शरीयत लॉ के हिसाब से। मुस्लिम, Parsis use Christians or any other which is not a Hindu or a Muslim. Hindu includes both Buddhists and Sikhs. Indian Succession Act 1925. So please, Jews, Parsis, Christian के लिए एक ही एक्ट है, Indian Succession Act 1925. मुस्लिम के लिए शरीयत लॉ है और हिंदू के लिए दो एक्ट हैं। वन इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अदर इज कॉल्ड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। बहुत लोगों को मुगालता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये बातें छोड़ देना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बाद। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड पीपल आर वो उसी में लगे हुए हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे दादा परदादा दादा की प्रॉपर्टी है, ये तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी होगी। बिल्कुल गलत है। आफ्टर 1956, अगर डेथ आफ्टर 1956 के बाद हुई है और डेथ 1956 के पहले हुई है, बहुत पुरानी बात हो गई। तब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कही जाती थी। अब तो या तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी होगी। आई टेल यू दैट, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। नाउ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 is applicable only when there is a testamentary instrument, that is I write a will. If I write a will, Hindu Succession Act 1956 does not come into picture. It is only Indian Succession 1925 Act applies, and I can make a gift in favor of any person of my property.
मैं अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट किसी को भी दे सकता हूं, प्रोवाइडेड आई एम अडल्ट एंड आई एम ऑफ साउंड माइंड। इंटॉक्सिकेटेड भी हूं तो भी जब हट जाएगी नशा तब मैं कर सकता हूं। अनसाउंड माइंड हूं, लेकिन जब जब मैं साउंड था तब मैं कर सकता हूं। आई कैन राइट ए विल। सिंपल वे ऑफ राइटिंग विल इज ऑन ए पीस ऑफ पेपर। वेयर इज द नीड ऑफ a stamp paper for writing a will? Just on a, where is the language of a will? There is absolutely no language of a will. Whatever way you want to write, you can write a will. लेकिन कोशिश ये कीजिए जब विल लिखने लगे, अपने बारे में लिखने के बाद अपने फैमिली के रिलेटिव, जो भी अपने फैमिली इमीडिएट फैमिली में, उनके नाम और एड्रेस सब दे दें, ताकि उनका नाम आ जाए कि ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। जरूरी नहीं है उनको देना, नाम आ जाए। बाद में बताइए क्यों नहीं दे रहा, कि ये कपूत है या ये है, मैं नहीं देना चाहता, मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी दूं। बट इफ यू राइट अ नेम ऑफ देम, दैट मीन्स यू हैव इंक्लूडेड देम, अपने होश आवाज कर लिए, लेकिन इसको मैं नहीं देना चाहता, या इस बेटे को देना चाहता हूं, या इस बेटी को देना चाहता हूं। ये आपकी विल है, विल आप कर सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए विल। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू गेट द रिजल्ट रजिस्टर्ड, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रजिस्टर्ड विल। रजिस्टर्ड विल में ऑथेंटिकेशन आ जाता है। रजिस्टर्ड विल में लॉस नहीं होती, बिकॉज इट इज देयर इन द रिकॉर्ड। रजिस्टर्ड विल लॉस नहीं होती, लेकिन रजिस्टर्ड विल, हमारे विल में तो हमेशा लोग कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए डिस्प्यूट, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए डिसगारंटेड रिलेटिव ऑल्सो। क्योंकि सबको बराबर दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। जिसको ज्यादा दिया वो कहे, वो दूसरा डिसगारंटेड होगा, वो डिस्प्यूट करेगा। बेटी को नहीं दिया तो बेटी की आजकल क्या है, बेटियां भी छोड़ती नहीं है। कौन छोड़, वो जमाना चला गया। बेटियों को भी उतना हक है जितना बेटे का हक है। क्यों दिया? पुराने जमाने के लोग अभी भी बेटे से प्यार करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आजकल सब कुछ बराबर है। बेटियों का तभी हिंदू एंड डिवाइड फैमिली में भी हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिसगारंटेड इसलिए होते हैं कि एक बेटा अमेरिका बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, माँ बाप इंडिया के पास हैं और वो अमेरिका में बैठा है। जब वो कहता है कि भाई ये सारा कुछ इसने इंडिया वाले ने लिखवा लिया, क्योंकि वो पास बैठा था, कोर्शन से हुआ, फ्रॉड हुआ, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, और मैं बाहर बैठा था, इसलिए ये पैसा सब ले गया। कभी कभी वो बराबर कर देता है कि भाई वहाँ वाले कभी हाँ रहते मेरे साथ थे, हाँ उसको दे दिया जिन्हें आज तक पूछा भी नहीं था तुम्हें, वो डिस्कनेक्टेड हुए। सो हमेशा ये होता है कि ये लड़ाई अब गिफ्ट बिल में रहती है, मुझे कम मिला या मुझे नहीं मिला। होता है कि नहीं होता सर? और लड़ाइयाँ कितनी डिस्प्यूट होते हैं, और विल में प्रोबेट लेना जरूरी नहीं है सर। ओनली 3 states आर देयर इन इंडिया वेयर प्रोबेट इज मस्ट, और वो 3 स्टेट हैं आपका महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड ऑफ कोर्स तमिलनाडु। बाकी जगह प्रोबेट लेना जरूरी नहीं है। प्रोबेट है जी, आई डोंट नो सर, मे बी दैट एप्लीकेबल लॉ है, क्या है उसमें प्रोबेट लेना जरूरी है? कितने पैसे लगते हैं प्रोबेट में? तो ये कम है। सबसे मैक्सिमम 75,000 रुपीज लगते हैं महाराष्ट्र में बिल लेने, प्रोबेट लेने के लिए। प्रोबेट तभी ली जाती है, दिल्ली में भी प्रोबेट ली जाती है, और 4% लगता है जब डिस्प्यूट होगा। ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। जहां डिस्प्यूट होगा वहां प्रोबेट लेना जरूरी है। 2-3%। विच वैल्यू? हाँ तो मर गया ना बेचारा। 3% तो वो स्टेट ड्यूटी से कम थोड़ी हुआ। आज 50,000 की प्रॉपर्टी आज 50 करोड़ रुपए की हो गई है, तो 50 करोड़ के प्रॉपर्टी देने के लिए 3% 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, और उसके पास अपने पास कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी बेच के ही देगा। Are you getting my point? यही तो स्टेट ड्यूटी में होता था। किस जमाने में 40-40, 50% स्टेट ड्यूटी होती थी। सर होगा, आई हैव नो नॉलेज, बिकॉज स्टेट लॉज आर डिफरेंट, बट आई एम टेलिंग यू इन दिल्ली और अदर प्लेसेस कोई नहीं है। ऐसे तो गिफ्ट का भी रूल है हमारे। देखिए अगर हरियाणा में जाइए आप, यू कैन मेक ए गिफ्ट टू योर रिलेटिव बाई ओनली 2,000 रुपीज। 2,000 रुपये में गिफ्ट कर सकते हैं आप। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मूवेबल की तो बहुत ही नहीं है, ओनली 2,000। इवन पंजाब ऑल्सो 2,000 रुपीज। लेकिन पीछे से यूपी में आया था, अब शायद हटा दिया, 5,000 रुपीज आया था। डेट उसकी खत्म ना हो गई हो, ये देख लेना, खत्म हो गई ना डेट।
यहाँ तक कितना बड़ा स्टेट है, 6% गिफ्ट टैक्स। वो इंडिया दिल्ली भी लेता है सर 6% पर गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी इतनी पड़ जाती है गिफ्ट में, क्योंकि नो इमूवेबल प्रॉपर्टी विल पास ऑन अनलेस इट इज रजिस्टर्ड, एंड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर गिफ्ट टैक्स प्रॉपर्टी भी 6%। मेरा पॉइंट समझ गए? सो मेरा पॉइंट ये आ रहा था कि जो विल लिखी जाती है वो आप प्रोबेट देना जरूरी नहीं है। कई स्टेट में जहाँ होगी वो लेना जरूरी हो, मुझे नहीं पता, बट दिल्ली में ज़रूरी नहीं है। आप अपना वो सर्वाइवर सर्टिफिकेट दे सकते हैं एंड विल के हिसाब से अपने नाम पे प्रॉपर्टी को मुटेट करा सकते हैं। रजिस्टर कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अदरवाइज यू हैव टू पे 6% लाइक दैट। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये विल होना बहुत अच्छा है। टू ग्रेट एक्सटेंट डिस्प्यूट कम होते हैं, लेकिन जहाँ डिफरेंस आएगा तो कोई भी कह देगा माय फादर वाज अनसर्न या कोर्शन से या ज़बरदस्ती या बंदूक रख के कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। और केस लड़ता रहेगा, 10-12 साल लड़ेगा, फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा थोड़े बहुत पैसे देकर। तो कईयों को तो आदत होती है कि लगा लो, कुछ तो मिलेगा। व्हेन यू स्टार्ट दिस डिस्प्यूट समथिंग यू विल गेट इट। सो देर आर पीपल लाइक दैट, पर लेकिन विल टू ग्रेट एक्सटेंट इज़ वेरी गुड। पर विल में कोई ज़रूरी नहीं है रिलेटिव को देना। विल में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, there should be 2 witnesses. There should be 2 witnesses in the will. It can be on a piece of paper. You get it registered. You can change your will anytime you like. You can change your will anytime you like. Even a registered will can be changed without a unregistered will. हमेशा यही तो है। वो बाद में एक निकाल लाते हैं, ये एक और विल है सर हमारे पास। आज समझते हैं ना विल कैसे बनाई जाती है, और कईयों की विल नहीं होती तो भी बन जाती है। आप ही लोग बनाते हैं। So my point is, will बहुत अच्छी चीज है, but if there is no will, not try to listen. Hindu Succession Act 1956. Please try to listen carefully. will में तो मैंने बोल दिया कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही प्रॉपर्टी कर सकते हैं जो आपकी ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है। ये नहीं है कि बीवी की प्रॉपर्टी की विल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप पार्ट ओनर तो पार्ट ओनर की will कर सकते हैं, बाकी की नहीं कर सकते। अगर HUF हैं तो HUF की बोल लिया अपने शेयर की कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो आप उसको विल नहीं कर सकते जब तक कि स्टेट लॉ अलाउ ना करता हो। टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, हाउ कैन यू मेक ए विल ऑफ द टेनेंटेड प्रॉपर्टी? यू कैन नॉट मेक ए विल ऑफ द टेनेंटेड प्रॉपर्टी। तो मेरा पॉइंट है विल के लिए भी कुछ अलाउड है, कुछ नहीं है। कमिंग बैक नाउ हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है। 6 को बाद में करूंगा। सेक्शन 8